Greetings everyone. Welcome to the channel. Biggest question of the day: how to solve mocks for CLAT? And with solving mocks, it's more about strategy. How to devise the strategy for a CLAT examination. So before I begin to tell you how to solve mocks, you need to understand how many mocks you need to solve. So before you appear in your CLAT examination, at least 60 full length mocks must have been solved. 60 full length mocks must have been solved by you. This is very, very important because this CLAT examination, all the more, is about practice. But before you even decide to appear in these mocks, before you even decide to sit for the practice, please understand the examination is completely focused on English. English as a language. English as a language, if you are proficient, if you have the understanding of English, this examination would be easy for you. But if your English is weak, it would be very difficult for you to cope with the scale and the length of this examination. The third basic thing that most of the CLAT aspirants do tend to forget or ignore is that this examination is not about knowledge, rather, it's about reading ability. This examination is less about knowledge and more about reading ability. So if you love to read novels, you are the right catch, right? And you must have already identified. The question is that, sir, when we appear in mocks, there are usual mistakes that we do. Now, these usual mistakes are going to get repeated also. Because if you are not going to learn it, you're going to do that same in your CLAT examination. And the last thing that every CLAT aspirant should remember is that you have a race against time. So you only have 120 minutes to solve 150 questions. 120 minutes for 150 questions is easier if every question is just plain MCQ, but it's not, because there are reasoning involved with it, and you need to also have elimination techniques to be able to solve it. So if you are equipped with all these fundamentals 1, 2, 3 and 4, let us quickly move to the basics. And I mean 9 to 10 easier steps. I'm going to decode the entire fundamental as to how to solve mocks for CLAT examination. So what you need to decide first is that you need to prioritize the important section. If I had to tell you that this CLAT examination, 150 questions can be broken down into 50 questions and 100 questions. Now 50 questions are knowledge based. These questions are knowledge based and these are reading based. 100 questions. 50 questions knowledge based. What I mean is that there would be GK, there would be QT. And in reading based, you know that it would be legal, logical and English, right? So in 150 questions, 50 questions are knowledge based, 100 questions are reading based. Out of this, you need to prioritize. So when you are appearing 60 mocks, try to change the priority order. कभी आप लीगल पहले करके देखो, कभी लॉजिकल, कभी इंग्लिश, कभी जीके, कभी क्यूटी, इस तरह से मिक्स मैच करके देखो और देखो कि आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, शुरुआती मॉक्स में आपको सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपके अटेम्प्ट्स जो हैं वो 100 प्लस जाए, स्कोर जैसा भी आए, अटेम्प्ट्स पे फोकस करिए। बहुत बार ऐसा मैंने स्टूडेंट्स को करते देखा है कि वो प्रायोरिटी रखते हैं कि सर हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। देखिए, एक्यूरेसी कोई नहीं मेंटेन कर सकता। एक्यूरेसी आपको नहीं पता होता कि आप जो मार्क कर रहे हैं वो सही मार्क कर रहे हैं कि गलत मार्क कर रहे हैं। एक्यूरेसी हम नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशंस में फोकस कर सकते हैं, बिकॉज हमें आंसर या तो पता होता है या तो नहीं पता होता है, तो हम तुक्के नहीं लगाते। लेकिन इसमें एक्यूरेसी आप 100 क्वेश्चंस वाले सेगमेंट में, लीगल, लॉजिकल और इंग्लिश वाले सेक्शन में आप एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर सकते। तो एक्यूरेसी तो एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है जो क्लैट में नहीं लगा सकते। हाँ, एक्यूरेसी आप इन 50 क्वेश्चंस में ज़रूर मेंटेन कर सकते हो जो कि नॉलेज ओरिएंटेड है। या तो आपको आंसर पता होगा या नहीं पता होगा।
तो आपको हर मॉक में अपने सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है कि आप पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर इस तरीके से पांचों सेक्शन को प्रायोरिटी रखनी है। सेकेंड स्टेप, प्लीज ये मत समझिए कि आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आप सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड टू लर्न टू लेट गो। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन है या कोई पैसेज है जो कि आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा टाइम खा रहा है, और फिर भी आपको एक बार रीड करने में वो पैसेज नहीं समझ में आया, तो जाहिर सी बात है दोबारा रीड करने में भी वो पैसेज कंपेरेटिवली नहीं समझ में आएगा। The moment you start reading the passage and you find that first 4-5 lines are very, very difficult, right? You are not able to make a sense out of it. Try to give another shot. Try to read the next 4 to 5 lines. But then, again, अगर 10 लाइन पढ़ के आपको पैसेज नहीं समझ में आया, तो instead of wasting another 5 to 6 minutes, it is better that you have wasted 30 seconds and you decided that you will not attempt that passage. Please, this is about ego issues. आप क्लैट में ईगो लेके मत जाइएगा। क्लैट कंसोर्शियम से आपका ईगो नहीं फंस सकता। वो चाहता ही है कि आप ज़बरदस्ती के पैसेजेस में अपना समय बर्बाद कर दें, राइट? क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि आप हमेशा सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें। मैं कहता हूँ सिंपल सिंपल अप्रोच बनाओ। अगर भाई देखो, जनरली तुमने 5-6 मॉक दिए और तुमने देखा कि यार मेरे 70 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, तो अपने टारगेट को सेट ऐसे करो कि 85-90 का टारगेट रखो कि मॉक 7 में, 7वें मॉक में मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। फिर देखो कि 90 क्वेश्चन तुमसे हो पाए कि नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अगर तुमसे 7वें मॉक में 90 क्वेश्चन हो गए और लेट से तुम्हारे नंबर बहुत कम आए, तो अगले मॉक में तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि यार 90-95 क्वेश्चन ही करने की कोशिश करता हूँ और अपने स्कोर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि जो मैंने गलतियां करी हैं पिछले मॉक में, वो इस मॉक में नहीं करूँ। धीरे धीरे करते करते जो अपने स्केल है उसको बढ़ाओ, ईगो पे मत लो। याद रखो कि तुम्हारे पास तीसरे स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 ही मिनट है। ये 6 मिनट को अगर हम पैसेज सॉल्विंग में बात करें, ये एक ऐसी ट्रिक है कि कोई नहीं बताता है। तो इस पैसेज को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। जैसे कि पहला पैसेज है फर्स्ट रीडिंग, और बहुत तेज़ी से फर्स्ट रीडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग तेज़ी से होती है तो 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा पैसेज पढ़ पढ़ डालते हैं, राइट? 3 मिनट। ये स्लो स्पीड है होगी। कोशिश करना कि 1.5 से 2 मिनट में हो जाए पूरा पैसेज। रनिंग हाई स्पीड में फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग के बाद आप तुरंत क्वेश्चंस पे जाते हो, और क्वेश्चन है आपके पास 5। जैसे ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद उसके ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शंस आपने रीड किए। अब आपको वापस से पैसेज पे जाना है। यू नीड टू, सेकंड स्टेप इज गो बैक टू द पैसेज। और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आप एक सरसरी निगाह से सेकंड रीडिंग करो उस पर्टिकुलर लाइन की जहां से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके 3 लाइन्स पहले और 3 लाइन्स लेटर, ये तीनों चीज़ों को आप दोबारा रीड करिए। अगेन नाउ यू विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपने 2 रीडिंग कर ली है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको क्लिक कर जाएगा। लेट्स से अगर आपको नहीं क्लिक किया, देन यू नीड टू गो बैक टू द पैसेज अगेन, एंड फॉर ऑल दिस यू विल हैव 3 मिनट्स। तो 3 मिनट में अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। यू हैव 180 seconds and you have to solve 5 questions. So that will leave you somewhere around 45 questions, 45 seconds। 45 सेकेंड्स में एक 45 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड होनी चाहिए आपके पास। यही प्रैक्टिस करना है सर, है ना? लोग पूछते हैं क्या प्रैक्टिस करना है? आपको यही प्रैक्टिस करना है कि 6 मिनट के अंदर अंदर में आप एक पैसेज सॉल्व कर पाओ जहाँ पे रीडिंग ओरिएंटेशन की बात है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 45 सेकेंड मिलेंगे, राइट? इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसी को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारी आदत हो जाए, राइट? उसके बाद आपको लेंदी पैसेज फिल्टर करने हैं शॉर्टर वंस में। सिंपली मैं अगर बेसिक मैथ्स लगाऊं, यहाँ पे बेसिक्स लगाऊं, तो देखो तुम्हारे पास 6 मिनट्स हैं। 6 मिनट्स हैं, और 6 मिनट अगर एक पैसेज को सॉल्व करने में मैं कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम, ऐसे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास 120 मिनट है। और 120 मिनट में तुम 6 मिनट अगर एक पैसेज पे दे रहे हो, तो तुम कितने पैसेज सॉल्व कर पाओगे? तुम 20 पैसेज सॉल्व कर पाओगे। मानते हो मेरी बात को? 20 पैसेज, वो भी तुम, मैं कह रहा हूँ रीडिंग वाले। 20 पैसेजेस अगर रीडिंग वाले हैं, हर पैसेज पे
ईच पैसेज पे कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस हैं। तो तुम 20 इंटू 5 करो, तो ये हो गया तुम्हारा 100 क्वेश्चन। तो यानी कि तुम 120 मिनट में 100 सवाल लगा पा रहे हो सिर्फ रीडिंग ओरिएंटेशन के। पर सर अभी भी 50 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए। इसीलिए आपको ये समझना है कि जो लेंदी पैसेजेस हैं उसके लिए मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट लगेगा। शॉर्ट पैसेजेस कोई ऐसे आपने पकड़ लिए, यानी आपने पूरा क्लैट का पेपर को खोलते से ही स्कैन करना स्टार्ट किया, पन्ने पलटना स्टार्ट किया और आपने मार्क करते गए पेंसिल से कि यार ये पैसेज छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। ऐसे अगर आपको लेट से 7 पैसेजेस भी मिल गए, 7 पैसेजेस भी मिल गए, है ना? और इन 7 पैसेजेस को आपने 3 मिनट में सॉल्व सॉल्व कर लिया, तो 21 मिनट्स में आपने 35 क्वेश्चंस निपटा दिए और आपकी विंडो बची जो कि आप यहाँ पे फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक जनरल मैथमेटिक्स है, एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट से बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से क्लैट में टाइम को आपको हमेशा नज़र में रखना है। हमेशा एनालॉग क्लॉक लेके जाइए और इसको कैसे करना चाहिए, कैसे आदत में आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, आपके सामने पैसेज 1 और पैसेज 2 रखा हुआ है। तो आपने इस पैसेज को रीड ही नहीं किया, सिर्फ इस पैसेज की लेंथ को देख के आपने ये मार्क कर दिया कि यार पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। इसी तरीके के शॉर्टर पैसेजेस को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। आइडेंटिफाई कर लीजिए शॉर्ट पैसेजेस हर सेक्शन के अंदर। पहले फर्स्ट 5 मिनट्स में फ्लैट के पेपर में पहले 5 मिनट में आपको यही कर लेना है, राइट? उसके बाद आप अपने अप्रोच को करिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकिंग सेक्शन बच्चे क्या करते हैं, सबकी इंग्लिश मजबूत रहती है तो सब इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं और सब लीगल पे बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इंग्लिश लोगों को लगता है कि ईजी है, लेकिन फिर भी लोग 30-35 मिनट यहाँ पे लगा देते हैं। लीगल में बच्चे 45 से 50 मिनट लगा देते हैं। सर अगर आपने इतना कर दिया, 45 से 50 मिनट लगाया, तो भी आप कितने क्वेश्चन कर पाए? 40 क्वेश्चंस। और अगर आपने इंग्लिश में 30-35 मिनट लगा दिए, तब भी आप कितने क्वेश्चंस कर पाए? 30 क्वेश्चंस। 40 और 30 मिला दो तो 70 क्वेश्चंस। और आपने समय कितना गवा दिया? 1 आवर 15 मिनट। एक 1 आवर 50 मिनट्स लगभग गवा देने के बाद, 1 आवर 20 मिनट्स गवा देने के बाद, आप सिर्फ 70 क्वेश्चन कर पाए हो। क्या आपको लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे उसमें? ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक नेग्लेक्टेड सेक्शन है, लॉजिकल सेक्शन, उसको कोई ध्यान नहीं देता। तो हमेशा याद रखिएगा, लॉजिकल सेक्शन की प्रोपेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश सेक्शन। लॉजिकल सेक्शन टेक्स लेस टाइम। तो जो कम समय लेने वाले सेक्शन हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग सेक्शंस होते हैं, वो आपके सीआर होते हैं, वो आपका जीके होता है। क्यूटी भी कभी कभी समय लगा देता है, लेकिन अगर क्यूटी में सिर्फ आप टारगेट लेके जाओ कि यार सिर्फ मेरे को 5 क्वेश्चन ही करने हैं, तो ये 3 सेगमेंट्स ऐसे हैं जो लेस टाइम लेते हैं। या तो आपको आंसर आता है या आपको नहीं आता है। इनको हमेशा प्रायोरिटी पर रखिए और याद रखिएगा, आपका 3 सेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई 3 सेक्शन क्लैट के मजबूत लेके जाइए, कोई 3 सेक्शन आप अफोर्ड कर पाएंगे कि पेपर आपसे हो पाए। इसके बाद टाइम टेकिंग सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंग्लिश और लीगल एप्टीट्यूड। इसमें डिसिप्लिन फॉलो करना है सर, में डिसिप्लिन फॉलो करना है। कैसे डिसिप्लिन फॉलो होता है? आपका पेपर अगर 2 बजे स्टार्ट होता है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आपने लेट से इंग्लिश पहले स्टार्ट किया, तो 2 से 2:30 जैसे ही होगा, आप स्विच कर जाएंगे। अब इंग्लिश के आपने 4 पैसेज किए हों, चाहे 3 पैसेज किए हों, चाहे 2 पैसेज किए हों, राइट? एक एग्जाम्पल वर्स के सिनारियो में बता रहा हूँ, आप स्विच कर जाइएगा। होता क्या है, क्लैट में सिलेक्शन 70 प्लस मार्क्स अगर आ जाता है, जैसे कि अगर आपका 70 से 77 मार्क्स आ जाता है, तो ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि 5th लिस्ट में आपको एनएलयू मिल जाएगा। आप जनरल कैटेगरी के हो तब भी। तो हमें कोशिश ये करनी है यार, हम सेफर साइड पे कब रहते हैं? जब 85 प्लस मार्क्स आ जाए मेरे क्लैट में, तो हमें एनएलयू मिल जाता है। एनएलयू मिल जाता है। अब 85 लाना डिफिकल्ट है। 50 टू 60 मार्क्स क्वेश्चन एक अच्छे खासे प्रिपेयर्ड व्यक्ति का आ जाएगा। बिना पढ़े क्लैट में आप 30 से 40 मार्क्स ले आओगे, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। 50 टू 60 मार्क्स अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 50 से 60 मार्क्स ले आओगे। लार्जली पढ़ने वाले सभी बच्चे 50 से 60 नंबर ले आते हैं। सिलेक्शन कराने के लिए ये जो 25 नंबर एक्स्ट्रा आते हैं, वो यहाँ पे बर्बाद होता है जहाँ पे आप समय ज़्यादा लगाते हो कुछ सेक्शंस में, क्योंकि आपका ईगो फंसा होता है। क्लैट देने वाले हर बच्चे का लीगल एप्टीट्यूड बढ़िया होता ही होता है।
अब उसमें जीतता कौन है? जो कम से कम समय में लीगल एप्टीट्यूड को सॉल्व कर ले। तो आपके दिमाग में ऐसा स्विच होना चाहिए, 2:30 जैसे ही बजा हम इंग्लिश से स्विच कर जाएंगे। अब 2:30 से डिसाइड कर रखा था हमने 3:10 तक कि हमें लीगल करना ही है, तो अब यही 40 मिनट्स में हम लीगल सेक्शन करेंगे। जैसे ही 3:10 हुआ, लीगल सेक्शन से हम स्विच कर जाएंगे। सिलेक्शन नहीं होता है उसका बहुत बड़ा कारण यही होता है कि बच्चे सारे सेक्शंस को उतना इक्वल समय देते ही नहीं हैं। वो 3 सेक्शन 2 सेक्शन सॉल्व करते हैं बस, और उसी से जो मार्क्स निकालते हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, अगर आपने सारे सेगमेंट्स को सॉल्व कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको आ रही हो, इट विल बी देयर फॉर ओनली सम टाइम. Please understand that every CLAT aspirant scores well in legal aptitude, quant, critical reasoning and GK are the game changers. ये जो sections हैं ये आपके पूरे CLAT के score को change कर सकते हैं, right? Further, do not spend more than 30 minutes in GK and QT combined. यानी कि आपके जो 50 questions का segment है वो आपको 30 minutes में करना है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है. विथ रिगार्ड्स टू अदर सेक्शंस, तो आपके पास बचे अब 100 क्वेश्चंस. अब 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 90 मिनट्स ही बचे हैं, राइट? 90 मिनट्स ही बचे हैं. तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कायदे से कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है. मान लें अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तभी 100 क्वेश्चंस में से आप कितने कर पाओगे? 90 क्वेश्चंस कर पाओगे? 50 क्वेश्चंस में से लेट से 30 मिनट्स में आपने 30 क्वेश्चंस कर लिए, तो 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 क्वेश्चन. बॉस इतना कभी मॉक में करके तो दिखाओ एक्यूरेसी के साथ, अपने आप नंबर आएगा. क्लैट में 120 क्वेश्चन कर लिए तो नंबर आ जाएगा. तो 1 मिनट एक क्वेश्चन पे देना है, तो एक पैसेज के लिए 5 मिनट बचता है. वही मैंने कहा 6 मिनट एट मैक्स, मिनिमम 3.5 मिनट्स. तो जो भी फ्लक्चुएट करना है आपका 3.5 से 6 मिनट के बीच में एक पैसेज को करना है. आप चाहे कैसे भी पहुंचो, कान सीधे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, आप इसी कैलकुलेशन पे पहुंचोगे. क्या ये चीज़ आपने अभी तक सोची थी? क्या इसको कभी आपने शेड्यूल किया है, स्कोर किया है? क्या इसको प्रैक्टिस किया है? अब सारी शक्ति आप सीधे मॉक वाले दिन लगाने जाओगे तो नहीं हो पाएगा. इसीलिए सेक्शनल उठाओ, 30 क्वेश्चन जो मॉक दे चुके हो उसको उठाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, लॉजिकल में देखो कि तुम्हें 30 क्वेश्चन करने में कितना समय लग रहा है. पहले तो ये देखो. सेकेंड स्टेप पे देखो कि तुम 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, और अपना एक टाइम डिवीज़न बनाना है. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आइडियल टाइम लिमिट फॉलो करना है एनालॉग क्लॉक से. जो 30 मिनट्स वाले सेक्शंस हैं वो 2 हैं, आपके इंग्लिश है, आपका CR है. तो ये मिला के आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाता है. ऑलमोस्ट 1 घंटा आप इंग्लिश और CR से निकाल लोगे. अब बचते क्या हैं आपके पास? 3 सेक्शन, GK, QT और लीगल. तो अब लीगल के लिए मैं कहता हूं कि एट मैक्स आपको 40 मिनट्स देना है. लीगल के लिए 40 मिनट्स देना है. अब 40 मिनट्स जब आपने यहां दे दिए, 1 आवर आपने यहां दे दिया, तो आपके पास बचा 20 मिनट, राइट? अब इस 20 मिनट में आप 10 मिनट के अंदर अंदर तो GK कर ही लोगे, और बचा 10 मिनट में आप QT सॉल्व करने की कोशिश करो. ऐसा मत करना कि QT छोड़ आओ. और वही अगर आपने लीगल को 30 मिनट्स ब्रैकेट में ले आए, अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि 30 मिनट में तुम लीगल के 35 क्वेश्चंस कर ले रहे हो, या इंग्लिश और CR को मिला के तुमने लेट से 50 मिनट्स में कर लिया, तो वही प्लस 10 मिनट्स जो हैं वो तुम निकालना सीख जाओगे. वो या तो तुम QT में लगा दोगे या तुम लीगल में लगा दोगे, वो एडवांटेज रहेगा. ये ध्यान रखना, यू आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम. उससे ज़्यादा कोई बात नहीं है क्लैट में, उससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्लैट में. एंड एट लास्ट सबसे बड़ा सवाल, बच्चों ने बहुत बार अपना सिलेक्शन गवाया है क्योंकि OMR में गलती कर दी है, या OMR भर नहीं पाए, या OMR पैनिक में भरा और ऑर्डर गलत हो गया. इसीलिए ये याद रखना है कि OMR एक फिलिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपको पैरेलली लेके चलना है, पैरेलली आपके अटेम्प्ट्स के साथ. यानी कि जैसे ही आपने एक पैसेज को क्वेश्चन में कंप्लीट किया, 5 क्वेश्चंस अपने मार्क किए क्वेश्चन पेपर में, उसको तुरंत OMR में बबल करिए, राइट देयर. सेक्शन वाइज कभी बबलिंग मत करिएगा. अगर सेक्शन वाइज में बबलिंग कैसे हुआ, जैसे कि आपने मान लीजिए एक सेक्शन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सवाल हैं. और लेट से आपने अटेम्प्ट किया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन.
अब आप पैनिक में बबल करने आए, ठीक है, और ऐसे ही आपने करके टोटल पूरे 50 क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं। अब आपने सोचा यार 50 क्वेश्चन कर लिए हैं मैंने, तो मैं बबल करता हूँ, या मैंने सेक्शन कंप्लीट कर लिया तो मैं बबल करता हूँ। बीच बीच में आपने क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, पर जब आपने बबलिंग करना स्टार्ट किया तो आपने पहला भर दिया, आपने जल्दी जल्दी में दूसरा भी भर दिया, आपने कहा तीसरा नहीं किया है, चौथा भर दिया, पांचवा भर दिया, फिर आपने फ्लो में छठा भर दिया, ठीक है, बस ये गड़बड़ हो गया, ये आता हुआ चीज आपका माइनस हो जाएगा। और अगर कई बार तो बच्चे ये भी करते हैं कि फ्लो में पूरा ऑर्डर चेंज करते हुए चले जाते हैं, इतना समय नहीं रहता, बच्चे हो, पेपर पहली बार दे रहे हो, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करने का आदत नहीं है, तो इसीलिए सेफ चलो, हर पैसेज के बाद ओएमआर को फिल करो। ये छोटे से सिंपल से 10 स्टेप्स को अपने मॉक को अपीयर करने के दौरान लगाओ, प्रैक्टिस करके मॉक दो, और फिर देखो तुम्हारे नंबर कैसे नहीं आते हैं। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे 1 to 1 कनेक्ट करूं, और या तो तुम्हें उसके ऊपर कोई एक सिंपल एनालिसिस, सिंपल एक्सप्लेनेशन बना के दूं। सो दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी स्पीकिंग ऑन हाउ टू अपीयर, हाउ टू सॉल्व फ्लैट marks. I'll see you guys in the next session. All the very best.